جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آواز آ رہی ہے. کیا کہیں گے بھائی؟ ہاں سچ والا جی, ان سے بات کرنی تھی. جی کریے, بات کریے. تو روز ہی آپ یہاں بیٹھ کر اسلام کا بدنام کرتے ہیں. میں ایک جاننا چاہتا ہوں بات کہ آپ ایک غلطی بتا دیجئے قرآن میں, ایک غلطی. اچھا تو کیا ہوگا اگر غلطی بتا دی ہم نے تو؟ غلطی بتا دیں گے تو مان جائیں گے غلطی کو. غلطی تو بہت ساری کتابوں میں نہیں ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے جناب؟ غلطیاں تو بہت ساری کتابوں میں نہیں ہو سکتی. ایسی دنیا میں لاکھوں کتابیں ہیں جس میں کوئی غلطی نہیں ہے, تو وہ کتابیں سارے اللہ کی طرف سے ہو گئی ہے. نہیں جناب, یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ غلطی نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے. کوئی بھی پھر اگر آپ آپ سوال ہی غلط پوچھ رہے ہیں نا, پھر آپ کا سوال نہیں, غلط. اگر آپ کوئی میتھمیٹکس کی کتاب اٹھائیں گے تو اس میں بھی غلطی نہیں ہے. ہاں, ایک جمع تو ایک دو نہیں ہی ہوتا ہے, لیکن ہر چیز جو صحیح ہے وہ اللہ کی طرف سے ضروری نہیں, لیکن جو اللہ کی طرف سے وہ صحیح ہی ہوگی یہ تو ضروری ہے نا. ہونا ہی چاہیے. ہاں تو وہی بتا رہا ہوں, ایک غلطی بتا دیجیے. ٹھیک, آپ سائنس کو مانتے ہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے, تو سائنس کی کتنی غلطیاں چاہیے آپ کو, آپ بتائیے, کاؤنٹ کر کے بتائیے, پھر ہم بتائیں گے کتنی ہیں قرآن میں. سائنس کی کتنی غلطیاں اگر ہم آپ کے سامنے پیش کریں تو آپ اسلام چھوڑ دیں گے؟ سائنس کی غلطیاں اگر آپ میرے سامنے پیش کریں گے تو میں کیوں اسلام چھوڑ دوں گا حضرت؟ نہیں, اسلام آپ کی کہہ رہے ہیں نا غلطی اگر پیش کریں گے تو وہ چھوڑوں. نہیں, قرآن میں اگر سائنس کی غلطیاں ہم نے ثابت کر دیں ہاں تو آپ کیا اسلام چھوڑنے تیار ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے, میں چھوڑنے کو تیار ہو جاؤں گا. اب ایک تو ڈالیے. سچ والا صاحب, ان کو ایک دو بتا دیجیے. ارے بھائی, پورے 7 گھنٹے کے ایپیسوڈ ہے برطانوی صاحب آپ کے, ہمارے سائنٹیفک ہاں, ایررز وہی ان میں کہہ رہا قرآن. ہوں یار, اب وہ یہ اب انہوں اتنی نے کچھ سنا ہی چیلنجنگ نہیں, بات کچھ کر کیا رہے ہی ہیں, نہیں مجھے اور تو آ لگ رہا گئے. ہے یہ کوئی اچھا ٹھیک پرینک ہے, کال ایک ہے بات یہ. سنیے, ایک بات سنیے. ابھی تک جو بھی میں نے آپ کی سچ والا صاحب دیکھیے بہت ہی زیادہ تہذیب والے آدمی ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساحل صاحب کی اور ان سبھی لوگوں کی جو میں سٹریم سنتا ہوں, تو ایک ہی بات پتا چلتی کہ آپ سب لوگ مل کر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے صرف ایک پوائنٹ کو لے کر رگڑ رہے ہیں. وہ ہے کہ ہمارے حضور, انہوں نے, ہمارے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے عائشہ بی بی سے نکاح کر لیا جب 6 سال کی تھے وہ. اس ایک بات کو چھوڑ کر آپ سب کے پاس کچھ اور نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اسلام میں اچھائی کیا ہے؟ اسلام نے اس دنیا کو انسانیت سکھائی ہے. کون سی؟ مثلا کوئی ایک آیت پیش کریے, قرآن کی کوئی ایک آیت پیش کرو جس میں انسانیت کا درس ہو. ایک آیت پیش کریں. دیکھیے یہاں اگر آپ اس وشے, دیکھیے سمجھیے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے کہ اس بات کو لے کر کے ہم یہاں اس مدے پہ نہیں آئے ہیں کہ یہاں ہم قرآن کے اوپر تلاوت کریں. ٹھیک ہے, آپ میرے کو ایک سائنٹیفک غلطی تو بتا دیجئے جو میں نے آتے ہی پوچھا تھا. ارے میرے بھائی, آپ سائنٹیفک غلطی کو کیا ہے کیا نہیں آپ کو کیا پتا, آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں نا, نہیں جو ہے ایک اسلام غلطی ایسا تو ہے بتائیے. ویسا ہے, تو آپ نے تو بتائیے نا. 7 گھنٹے کی سٹریم کی ہے, ایک غلطی بتائیے. ارے میرے بھائی, اس کا مطلب آپ نے وہ دیکھا ہی نہیں, آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا ہم نے کیا ہاں, کیا بتایا. میں نے دیکھا اور مجھے یہ پتا چلا کہ اس میں سے کوئی بھی ہم نے غلطی کیا غلط نہیں ہے. بتایا؟ ارے میرے بھائی, ہم نے ہاں جو سچ کچھ والا جی, کہا اس سچ میں والا غلط جی. کیا تھا؟ جی سمیر بھائی, میں ایگزیکٹلی اب آپ پوائنٹ پر آ گئے ہیں. آپ نے سائنٹیفک ایررز والی ایپیسوڈ دیکھی ہے تو آپ ڈائریکٹ بات شروع کیجئے نا کہ وہاں پہ کس جگہ پہ مس کوٹ کیا گیا, غلط انفارمیشن دی گئی, جھوٹ بولا گیا, ہماری طرف سے ہم نے کیا غلطی کی بتائیے نا. ایگزیکٹلی ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, زمین جو ہے چپٹی نہیں ہے آپ نے کہا, کیا نہیں ہے کیا چپٹی؟ ہم چپٹی پہ آئے نہیں ابھی زمین. کیوں؟ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی, قرآن ویسے ہی جھوٹا ثابت ہو چکا ہے. نہیں ہم نے ہوا جو نا, غلطیاں بتائیں. نہیں ہوا, کیونکہ زمین چپٹی ہی ہے. ہو مجھے یقین نہیں ہو رہا برطانوی صاحب یہ لائیو پورا کال ہے. یقین. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ زمین جو فلیٹ ہے؟ میں مانتا کیا ہوں, زمین فلیٹ ہی ہے.
अच्छा, इसका कोई आपने कैसे जाना ये कि जमीन इस फ्लैट है? तरह से मैंने जाना कि जब भी हम किसी भी प्लॉट का एरिया निकालते हैं तो वो स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर मीटर्स में होता है, और स्क्वायर का मतलब ही होता है चपटी चीज। ठीक है, वो वॉल्यूम तो निकाल नहीं रहा, स्क्वायर निकाल रहा है, तो जिसका मतलब है जमीन चपटी ही है। अच्छा, तो एक चींटी अगर फुटबॉल के ऊपर है तो उसके लिए जमीन चपटी होगी या गोल होगी? वो चपटी, फुटबॉल उसके लिए गोल होगी या फ्लैट होगी? चपटी, उसके लिए चपटी होगी, फ्लैट होगी फुटबॉल। उसके लिए फ्लैट होगी ना, लेकिन हाँ है तो बिल्कुल, नहीं फुटबॉल फ्लैट, सही है। तो उसके लिए तो फ्लैट है ना। तो उसके लिए है ना, मैं ये कब कह रहा हूँ कि नहीं है, उसके लिए उसको हाँ लग रहा है ऐसा। हाँ लेकिन वो चींटी है, हम इंसान है, हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। हमने बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि वो चूंटी है उसके लिए चपटी है, हम इंसान हैं हमारे लिए जो है जमीन चपटी है। हमारे लिए भी है, लेकिन हमने अब जान लिया है कि चपटी नहीं है। मतलब चपटी तो चूंटी है भी भाई हमारे नहीं लिए, आप चपटी आप है, आप जान हमारे समझ लिया ही है नहीं लिए रहे चपटी मेरे है। बात। आपने जान लिया है का मतलब यह है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं जमीन से, तो आपको दिख रही है। वही काम अगर आप चींटी के साथ करेंगे तो उसे भी गेंद जो है वो गोल नजर आनी हाँ शुरू तो हो सही है जाएगी। ना, इसका तो मतलब ये हमने तो हमने नहीं देख है लिया, ना बाहर कि निकल गए, गेंद हमने देख लिया उसके चपटी नहीं है, लिए तो इसको मानने चपटी में क्या नहीं खराबी है। है? देखिए देखिए, आप अल्लाह को ये आप बात आप पता बीच नहीं में थी बोले, क्या? आपने मेरी बात सुनी नहीं। जी गेंद चूंटी के लिए तो चपटी है ना हजरत। जी, अच्छा, तो बिल्कुल हम सही बात अल्लाह है। की बात कर रहे हैं हजरत, अल्लाह ने कुरान भेजा, अल्लाह क्यों कह रहा है चपटी है? अगर अल्लाह ने कुरान भेजा है तो हमारे लिए भेजा है ना हजरत, अच्छा कि एक बात, अंतरिक्ष में रहने वालों के लिए भेजा भाई है। भाईजान बोलिए ना। एक बात बताएं, गधा उड़ सकता है? गधा उड़ आ सकता गए है? फिर से वापस, आ गए बुराक गधे पे। अरे भाई आ मैं गए बुराक आपसे गधे पे। आपसे बताऊं इसका साइंटिफिक जवाब दूं? सवाल पूछ रहा हूँ देता आप। हूं, देता हूं, जवाब देता हूं, सुन तो लीजिए एक सेकंड, सब्र रखिए। गधा उड़ सकता है अगर अल्लाह चाहे। तमाम आर्गुमेंट खत्म हो गए साहब। दैट्स ऑल माय लॉर्ड, दैट्स ऑल। ये क्या बात हुई? जब आर्गुमेंट तो अब खत्म आगे हो क्या गए बात करें? तो अगर अल्लाह चाहे आप तो आप आपको सरकास्टिक रीजन होने नहीं लग गए, चाहिए, आप सरकास्टिक हो गए। साइंटिफिक चीजें नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, हम आपसे आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। अल्लाह चाहे तो सूरज कीचड़ के अगर पानी में अल्लाह समीर डूब चाहे साहब, तो सकता गधा है। उड़ सकता है, तो बात कैसे यस, आगे तो बढ़ी? फिर हम हमारा तो आर्ग्यूमेंट ही नहीं रहा ना। अल्लाह अच्छा चाहे समीर साहब तो एक बात बिल्कुल, बताइए, आपका आर्गुमेंट तो उसी समय खत्म हो गया ना जब आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अल्लाह का पैगंबर मानने से ही मना कर दिया ना। बात तो तो खत्म आपका हो गई। तो वहीं खत्म हो गया ना काम, ठीक तो है, उसके आप आगे आप जीत बढ़े गए, हम कैसे हार रहे? गए। आप जीत गए, हम हार गए, हम आपसे बहस कर ही नहीं अच्छा सकते। समीर साहब आखिरी एक बात मैं कर लूं आपसे। आप कह रहे हैं अल्लाह चाहेगा तो गधा उड़ सकता है, तो ये बताइए कि अल्लाह एक ऐसा पत्थर बना सकता है कि उसको खुद ना उठा सके वो? अच्छा ठीक है, वो बात छोड़िए, आप ये बात, इस बात का जवाब मैं आपको ये क्या देता हूं, बात हुई? लेकिन इस आपने बात को जवाब नहीं ध्यान दिया में रखिए। सर, आपने जो जवाब भी नहीं दिया। देता हूं ना हजरत, एक सेकंड को तो रुक जाइए, कह तो रहा हूं कि अभी जवाब देता हूं। इस सवाल का मैं जवाब आपको दूंगा। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जो गेंद के आपने एलॉगरी बनाई थी ये बताने के लिए कि वो चपटी है या गोल, वो एलॉगरी आप हार चुके हैं और आप नहीं गधे बिल्कुल पे नहीं आ गए और अब एक पत्थर पे आ रहे हैं। इसका सर, मैं जवाब भी बिल्कुल मैं नहीं आपको आया देता सर, हूं। मैं बिल्कुल नहीं आ इसका रहा। जवाब मैं आपको वो तो देता हूं। आप आप जो है ना, आप एक जिसको कहते हैं ना, एक रेड हेयरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह जो है वो ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको खुद ना उठा सके। इसका मतलब पता है आपको कि अगर मैं कहूं कि अल्लाह जो है वो ऑल माइटी है, तो अगर मैं कहूं नहीं बना सकता तो कैसा ऑल माइटी है, नहीं उठा सकता तो कैसा ऑल माइटी है। देखिए ये सब जो है ना क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप उन सब लोगों को बता सकते हैं जिनका ईमान ढीला होता है, जो अंदर से ऑलरेडी हिले होते हैं। लेकिन जिनका ईमान पक्का होता है उनके लिए गधा उड़ सकता है। अच्छा, ईमान किसे कहते हैं भाई? उसको कहते हैं जो ईमान क्या आप लोगों होता ने है? खो दिया है नहीं, अल्लाह के हम आपके ऊपर। पास है ना। अरे मेरे हाँ भाई, है आपके मेरे पास तो है पास ना। अल्लाह के ऊपर। अच्छा ईमान, अच्छा अल्लाह के ऊपर ईमान होता है, अल्लाह के नीचे होता है? देखिए अब आप कैसी बातें करते हैं? आप नहीं कितने नहीं, इज्जतदार आदमी, किस तरह की बातें कर रहे हैं? अल्लाह अरे के मेरे ऊपर भाई, होते हैं आप ही ने तो फरमाया है ना कि नहीं अल्लाह देखिए के देखिए, ऊपर आपने कहा, नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ देखिए कि कितना अल्लाह के कितने ऊपर वो हम ईमान। मोहतरम ढंग से बात कर रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऊपर अरे नीचे भाई, की ऐसे आप ही बातें ने करी तो जाती हैं? कहा, मैं आप ही अरे के आपको लफ्ज़ों समीर पता को है दोहरा भाई, रहा ऊपर का हूँ क्या मेरे मतलब भाई। होता है? समीर भाई, ऊपर आपको मतलब उनके ऊपर ईमान है, ऑन ईमान क्या ऑन होता हिम, है ये वी पूछा गया ट्रस्ट आपसे। ऑन गॉड, इन गॉड। ओके फाइन। अरे मेरे भाई,
मैं आपसे यही तो जानना चाह रहा हूँ ना कि ईमान होता क्या है, किसे कहते हैं ईमान? ईमान का मतलब होता है जब जिस चीज के ऊपर आप यकीन करते हैं, उसके विषय में आप सोचते नहीं हैं, उसके ऊपर यकीन करते हैं। भाई किससे आप यकीन कैसे करेंगे? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर यकीन किया, जो कुरान में है उसके ऊपर आपने, आप उनका नाम बार बार ले रहे हो, आपने तो देखा नहीं ना उनको। सुन लीजिए, आपने अल्लाह को देखा है? मैंने तो अपने परदादा को भी नहीं देखा मोहतरम। अच्छा ठीक है, तो आप उस पर जो है ईमान रखते हैं, परदादा पर? परदादा पे मुझे ईमान रखने की जरूरत नहीं, उनकी एग्जिस्टेंस मेरी एग्जिस्टेंस का जिम्मेदार है। यहाँ बात ईमान की हो रही है ना, आप ईमान को डिफाइन करने के लिए ये बातें कर रहे हैं, तो परदादा बीच में क्यों आ गए? हम सवाल अभी तो आपने पूछा ना मुझसे, तभी तो आ गए बीच में। अभी आपने मुझसे पूछा कि उन्होंने देखा नहीं, मैंने देखा नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजूर को, तो मेरे दादा को भी तो मैंने नहीं देखा, इसका मतलब वो नहीं एग्जिस्ट करते। अरे मेरे भाई, यहाँ एग्जिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ईमान की। आप जिसको देखे नहीं, पूरा ईमान है, जानते नहीं, जांचा नहीं, परखा नहीं, आपने देखा नहीं, तो आप पर ईमान कैसे लाए? उनके ऊपर ईमान कैसे लाए? क्योंकि अल्लाह पे ईमान ही लाना होता है मोहतरम, दूसरा कोई तरीका नहीं है ना। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है जो अल्लाह को ढूंढ सके। अरे यार, म्यूट करना पड़ेगा मुझे आपसे, कम्युनिकेशन करना है ना आपको। आप ऐसा लग रहा है कि सवाल और जवाब दोनों याद करके आ गए आप। थोड़ा सा ऐसी बात नहीं है मोहतरम, दो लोग बोल रहे हैं तो मुझे सुना ही नहीं दे रहा। हाँ सुनिए, आप सचवाला जी क्या कह रहे हैं, सुनिए जी। मैं आपसे ये कह रहा था, आपने कहा कि अल्लाह के ऊपर आपको ईमान है। मैं आपसे बार बार ये पूछ रहा हूँ कि ईमान असल में है क्या? ईमान किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ईमान? क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? जी, आप ही का जवाब देना है ना। ठीक है, ईमान उस चीज को कहते हैं जो बिना एविडेंस के भी जिस चीज पे आप यकीन करते हो उसे ईमान कहते हैं। अच्छा, बिना एविडेंस के किसी चीज को मान लेने का नाम ईमान है। बिल्कुल, कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है, ईमान के लिए जरूरी नहीं है मोहतरम। सुनिए, आप ये फरमा रहे हैं कि ईमान के लिए ना तो इल्म जरूरी है, ना अकल जरूरी है, ना मंतिक जरूरी है, ना दलील जरूरी है, ना सबूत जरूरी है। जी ईमान के लिए सिर्फ मानना जरूरी है, आपका ये कहना है ना? जी बिल्कुल, ठीक है। मैं भी तो यही कहता हूँ, बार बार मैं लोगों को बता रहा होता हूँ। सुनिए, देखिए, बार बार मैं लोगों को यही तो बताता हूँ ना, जो मोमिन होता है वो मानने वाला होता है। मोमिन का काम ना जानना है, ना जो है अकल से काम लेना है, ना मंतिक से काम लेना है, ना उसे सबूत चाहिए, ना दलील चाहिए। मोमिन सिर्फ मानने वाले को कहते हैं, उसके लिए कोई लॉजिक की कोई जरूरत नहीं है। आप भी तो इसका जवाब दे दूं? मैं भी यही कहता हूँ। मैंने इस बात का जवाब दे दूं? देखिए, जो आपने ये बात कही ना, आप जो कह रहे हैं मैंने भी तो वही कहा है ना। थोड़ा सा जवाब दे लेता हूँ। मैं आपके साथ इत्तेफाक रख रहा हूँ ना, थोड़ा बोल लूं? जी बोलिए। देखिए, मैं आपके साथ बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूं क्योंकि मैं आपके बहुत वीडियो देखता हूं और आप हर वीडियो में यही बात कहते हैं कि यानी आपकी बात का लब्बो लबाब यही होता है कि जो एक मोमिन है वो सोचता समझता नहीं है, जैसा कह दिया जाता है वैसा करता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी समझ लीजिए, एक मोमिन सोचता समझता तब नहीं है जब बात ईमान की आती है, इस्लाम की आती है, कुरान की आती है, अल्लाह की आती है, तब नहीं सोचता। लेकिन जब एक मोमिन को इस मादे के बारे में सोचना होता है, इस दुनिया के बारे में सोचना होता है, तो हम सोचते हैं। अगर नहीं सोचते होते तो सारी दुनिया अब तक हमें खा जाती, खत्म कर देती, क्योंकि सारी दुनिया इस्लाम को खत्म करना चाहती। जाहिर बात है, हम भी तो यही कहना चाहिए। इस्लाम जो है इतना प्यारा है कि वो सिर्फ मानने की बात करता है, वो जानने की बात नहीं करता। पूरे कुरान में कोई एक भी आयत ऐसी नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि ऐ लोगों पहले जानो फिर मानो, ऐसा कहीं भी नहीं है। कुरान का काम ही, इस्लाम का काम ही यह है कि वो लोगों से मनवाए और लोग उसकी बात मानते रहें। यही तो इस्लाम का काम ही ईमान लाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो आपसे बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ ना, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन गलत कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। क्योंकि जो आप कह रहे हैं,
हाँ, क्यों इस तरह से गलत कहा कि आपका कॉन्टेक्स्ट है ईमान के ऊपर कहना, इस्लाम के ऊपर कहना, कि भाई मुसलमान जब इस्लाम की बात आती है तो सोचता नहीं है। बिल्कुल सच बात है, और सोचना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब इस्लाम की बात आती है, ईमान की बात आती है, तो हम कट मरने को तैयार हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जो कि ज्यादातर लोग सोचते हैं, कि मुसलमान और ईमान वाले तो कुछ नहीं सोचते, कहीं कुछ नहीं सोचते। हमने ऐसा सोचने की नहीं है। बात नहीं की, हमने तो यही कहा आपने है नहीं कही ईमान होगी, आपने नहीं कही। मोमिन, सुन लीजिए, आप बोलिए। मैं बार बार यही कहता हूँ, मोमिन वो होता है जो मानता है, जानने वाले को मोमिन नहीं कहते। सच बात है, जानने बिल्कुल वाला सच। एक्स मोमिन हो जाता है, जानने वाला एक्स मोमिन होता है, मानने वाला मोमिन होता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल सही बात वो कही। जान क्या जाता है जानने इस्लाम और को, वो क्या इस्लाम के मानना, बाहर आ जाता है। देखें, जो बिल्कुल सही बात। इस्लाम को जान जाता है वो इस्लाम के बाहर आ जाता है। जब नहीं, तक वो मान रहा होता है, दायरे में रहता है इस्लाम के, क्योंकि बिल्कुल, ये इस्लाम सब जो बातें, है ये असल ये में सब सबमिशन का नाम है। इस्लाम जो है पीस को नहीं कहते, बल्कि सबमिशन को कहते हैं। यानी उसके आगे घुटने टेक देना, अकल पर ताला डाल देना और कानों को बंद कर देना, आंखों को बंद कर देना, जो कुछ उसे कहा गया वो उसको एज इट इज कबूल कर लेना। समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने मान लिया, हमने इताअत कर डाली। ये है असल में बिल्कुल। कुरान का और इस्लाम का असल मुतालबा, और इस तरह के मुतालबे को एज इट इज कबूल करने वाले को मोमिन कहते हैं। मैं भी तो यही और कहता रहा हूँ ना, दुनिया को हमारे वही भाई बता भी यही हैं, सचवाला साहब, हमारे भाई भी यही हैं, और इनको मैं यही जाने है। नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने शुरू में ये कहा था कि साइंटिफिक कोई एरर कुरान में नहीं है, और अगर है तो वो मान लेंगे, ये इनके हाँ, अल्फाज हैं। अभी तक नहीं तो बताया, बताइए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं तो मैं शुरू करूंगा, और आपको मैं झूठा साबित करूंगा। अभी अभी अल्लाह को झूठा साबित करूंगा और कुरान को आपको झूठा करिए, साबित करूंगा। बताइए। आप 36 खोलिए, आपके पास अगर वो होगा, और 51 नहीं है, 49 मोबाइल से खोलिए। बात कर रहा हूँ, नहीं है मेरे पास। हाँ हाँ, तो लिख लीजिए, ये सब 36 बहुत आसान है नंबर याद करना। उसमें हम्म कैटेगोरिकली खुदा ने ये कहा है कि दुनिया के जितने जानदार हैं उनको पेयर्स की शक्ल में बनाया गया है, जोड़ों की शक्ल में बनाया हम्म गया है। और आपको पता है ऐसे सैकड़ों जानदार हैं जो हम्म सिर्फ फीमेल ओनली स्पीशीज हैं। आपको हम्म इल्म है साइंस का, कभी पढ़ा है साइंस आपने? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे एक कोशिकीय जीव जो हैं वो भी बिना मादा के ही जन्म लेते हैं। हाँ, तो आपका अल्लाह झूठा साबित हो गया, कुरान साबित नहीं हो हुआ गया, और ना, अगर आप नहीं इस्लाम नहीं नहीं हुआ, छोड़ते हैं तो आप झूठे साबित होंगे, नहीं अभी हुआ, अभी नहीं हुआ ना, सारी दुनिया के सामने। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ साबित ना, सुन तो लीजिए। क्यों नहीं होगा? आपने कहा था ना कि इतना अगर आप ज्यादा कुरान में एक्साइटेड एक भी क्यों है? साइंटिफिक एरर सुनिए, निकालेंगे तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। बात तो बात तो आपका जो करने दीजिए मोहतरम, बात तो करने मर्दानी दीजिए, साहब, इतना जी समीर क्या साहब, हो गया। आप पॉइंट पे आइए। हाँ समीर साहब जवाब दीजिए। हाँ ठीक, देखिए, मान लीजिए आप किसी ऐसे अमीबा को लेते हैं जो कि एसेक्सुअली डिवाइड नहीं, इधर करता तो मत आइए। मैं स्पीसीज की बात कर रहा हूँ जो नजरों से नजर आता है। मैं नाम ले रहा हूँ न्यू मैक्सिको व्हिपटेल जोड़ों का, की। जो फीमेल ओनली स्पीसीज है, वो पेयर में नहीं होता। मिलियंस ऑफ ईयर्स से वो सिर्फ फीमेल ओनली स्पीसीज है। आप ये हम्म बताइए कि आपके अल्लाह ने झूठ क्यों बोला कुरान में कि जितने जानदार उसने तख्लीक किए वो पेयर्स में किए? आपका अल्लाह झूठा है, आपका कुरान झूठा है। अगर आप इस्लाम नहीं छोड़ते तो आप झूठे हैं। अरे बहुत हाइपर हो रहे हैं, बात नहीं सुनी फिर बीच में बोले। अच्छा ठीक है, देखिए वो जो एक परपेचुअली फीमेल टाइप ऑफ क्रीचर जो आपने बताया, आप इस बात को ध्यान से पढ़िए। परपेचुअली फीमेल क्रीचर के अंदर खुद ही एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स पैदा होते हैं, खुद ही पैदा होते हैं उनके अंदर। तो इसका मतलब यह है कि दो नर और मादा की जरूरत हमेशा पड़ती है मोहतरम। आपके आसमानी बापे को तो पड़ती है दोनों की, उसको आके फूंक मारनी पड़ती है मैरी की प्राइवेट पार्ट में। हाँ ठीक है, अब आप इंसल्ट्स पे आ जाइए, आ जाइए इंसल्ट पे, लेकिन सारी दुनिया देख रही है मोहतरम, सारी दुनिया देख रही है, इंसल्ट कौन कर रहा है? नहीं नहीं, मैं सच कुरान वाला की जी, आयत, सच आप वाला कुछ जी, वो बोलिए। आयत, एक मिनट समीर भाई, वो आयत देख लेंगे हम स्क्रीन पे। सच वाला जी, सरकेज़म में हम कह रहे हैं या इस तरह से कुछ ये समझ रहे हैं वो? ठीक है, वो हेलो, आयत निकालिए, वो आयत निकालिए। 36 निकाल लीजिए सच वाला साहब। और एक और आयत है, मैं ये मेमोरी से कह रहा था लेकिन अभी मैंने चेक कर ली है। 36 मुझे 51-49 दोनों में ये कहा गया है कि पेयर्स में क्रिएट किए हुए तमाम जानवर। जी, जिन आयात में निकालिए। कुरान में कहा है कि सूरज और चांद घूम रहे जमीन के गिर्द, वो आयत भी निकालने की, उससे फिर इनसे पूछें कि अगर सूरज जमीन के गिर्द घूमेगा तो फिर दिन का क्या हाल होगा।
वाला जी नंबर क्या है वो? और 36 है, 6 है, और दूसरी वाली 5149 है, दोनों निकाल ली। 51 की 49। हाँ अब्दुल भाई मैंने निकाल लिया। अब्दुल भाई ये सूरह यासीन की ये आयत है जिसमें लिखा है सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्दु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। पाक है वो जिसने पैदा किया जोड़ों को सारे के सारे। यहाँ कुल्लहा आया है, जोड़ों के साथ कुल्लहा का लफ्ज़ भी आया है। इसमें सिर्फ ये नहीं कहा कि जो है जोड़े, सारे के सारे जोड़े, ये बात उसने कहे, ये इस तरह से यहाँ लिखी है। जी क्या कहेंगे जनाब, फरमाइए। समीर अहमद साहब, समीर साहब बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी मैंने बात सुन ली, आपने मुझे म्यूट पे कर दिया था, सुनिए। अच्छा, तो वो जितने भी पैदा होते हैं सब जोड़ों के साथ ही पैदा होते हैं। आप बोलेंगे अभी तो इन्होंने बताया न्यू मैक्सिको का क्रीचर, वो क्रीचर भी जोड़े के साथ ही है, लेकिन वो जोड़ा एक ही क्रीचर के अंदर है। मेरे भाई लेकिन ये कुरान में नहीं है, लेकिन आपकी जबान में है, आप कह रहे हैं लेकिन कुरान में लेकिन नहीं है। कुरान ने तो हर चीज को जोड़ा बताया है। तो जोड़ा ही तो है ना मोहतरम। क्या जोड़ा है, क्या जोड़ा है? जोड़ा ही तो है, उनके अंदर जो क्रोमोसोम पैदा होते हैं। अरे मेरे भाई क्रोमोसोम तो कुरान को पता है ना, कुरान के लिखने वाले को पता है। वो बेचारा तो जो है एक ये कैसे कह सकते हैं? जाहिर बात है एक अल्लाह को नहीं पता। अरे अल्लाह कौन है मेरे भाई, कौन ये? अरे यार जो है इतनी ज्यादा गुलामी ना करो अरबों की। अल्लाह जो है असल में अरबों का तराशा हुआ खुदा है, उसको बेचारे को क्या पता क्रोमोसोम क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुरान को आपके अल्लाह को क्या पता मेरे भाई। अरे इतने ज्यादा गुलाम तो ना बनो ना, इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं आप जब से। अरे क्या क्या कहते चले जा रहे हो भाई। अल्लाह अरे अल्लाह वो है जिसको अरबों ने तराशा है। आप म्यूट कर देते हैं। जी बोलिए। जी तो मैं ये कह रहा था हो जाती है, एक की बात ही नहीं हो सकती ना, इसलिए आपको तो मैं बोल लूंगा, लेकिन आप हाँ आप बोलिए आप। ठीक है, तो जब म्यूट करने लगे तो बता दिया करिए ना, फिर यहाँ ऐसा लगता है आदमी उल्लू बोल रहा है। तो सुनिए, जो आपने अभी बात कही वो बिल्कुल सही कही है कि भाई आप कह रहे हैं कि अल्लाह जो है ये अरबों का बनाया हुआ है। ये आपके लिए सही है क्योंकि जो है आप काफिर हो चुके हैं, आपके लिए अल्लाह बेकार ही है, हमारे लिए नहीं है ना मोहतरम। तो आपको साबित करना पड़ेगा ना कि अल्लाह जो है अरबों का नहीं है। तभी तो तब से कह रहा हूं कि एक गलती भी बता दीजिए ना कुरान में साइंस की, एक भी बता नहीं रहे आप। अरे हम बताए तो आप कबूल कब करने वाले हैं? आप तो ज़हनी गुलामी पर उतर आए हैं। कबूल तो आप अरे भाई यहाँ आपका कुरान ये कह रहा है खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, सारे के सारे जोड़े, मर्द औरत जोड़ा, नर मादा जोड़ा। तो यही तो हम कह रहे हैं, समझ लो। इसमें गलत कहाँ हो गया मोहतरम? वही तो समझाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे म्यूट कर दिया जाता है। नहीं हुआ। अरे तो आप क्रोमोसोम पे जा रहे हैं ना भाई, हम कुरान पे बात कर रहे हैं। क्रोमोसोम का कुरान को क्या पता भाई? बैक्टीरिया अल्लाह को तो क्रोमोसोम का पता है ना मोहतरम। अल्लाह से बात नहीं हो सकती ना भाई। अरे मेरे भाई ये ईमानियात की बात कर रहे हैं ना। अल्लाह आखिर असल में है कौन? अल्लाह का कुरान से लेना देना क्या है? क्या अल्लाह का कलाम है कुरान? क्या कुरान अल्लाह का कलाम है? कुरान अल्लाह का कलाम कैसे हो गया? फरिश्ता जिब्राइल ने अल्लाह के वर्ड ला करके बताए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपको साबित करना पड़ेगा ना सल्लल्लाहु कौन है, उनको ये कुरान दिया गया। आपको पता है? क्या कुरान से साबित कर सकते हैं आप? साबित क्या करना, हमें तो ईमान लाना है। जब इस्लाम की बात आती है तो ईमान लाया जाता है। ईमान ला लें, यही तो ज़हनी गुलामी, अरबों की ज़हनी गुलामी करने वाले को मुसलमान। अरबों का गुलाम नहीं हूं मैं कह रहा हूँ। अरे भाई ये अल्लाह जो है अरबों का तराशीदा खुदा है। ये नबी और रसूल अरबी है। कुरान जिस किताब का नाम है वो अरबी है। हदीस के भंडार है पूरे के पूरे अरबी में है। ये तारीख अरबी है, पूरी अरबी है, और जो है अफकार सारे अरबी हैं। और इन सब की जो है ये गुलामी करने वाले मुसलमान हैं।
अच्छा, उनकी मैं एक गुलामी बात करने पूछना वाले चाह रहा मुसलमान कहते हैं जी। समीर साहब, XY क्रोमोसोम्स जो हैं वो मर्द के पास भी होते हैं, तो क्या वो एक कंप्लीट जोड़ा है? XY क्रोमोसोम मर्द के पास भी होते हैं, जिनको कि वो औरत के अंदर डालता है, जिसके पास सिर्फ X क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक औरत है जिसके साथ मिलके हम जोड़ा बनते हैं, लेकिन वो जो न्यू मैक्सिको के क्रीचर की आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर ही गर्भाशय में एक प्रक्रिया हो जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अल्लाह का कहना गलत हो गया। तो पेयर कहां से हुआ? वो नहीं, एक वो पेयर सिंगल कहां से हुआ, मैं ये कह रहा हूँ। हम जब पेयर नहीं तो वो पेयर कैसे हो गया? हम पेयर तो नहीं, इसका मतलब फिर एक मर्द मतलब पेयर एक है मर्द अपने आप में, कंप्लीट पेयर आपके थोड़ी है। X भी है, Y भी है। मर्द हम कंप्लीट पेयर कैसे नहीं है, पेयर उसको होंगे? औरत की हमें जरूरत पड़ती है। गर्भाशय चाहिए महोदय। हेलो, अरे भाई, आपने जो उसूल हमें बनाया अभी उसी गर्भाशय की बात चल चाहिए। रही है। मैं तो आपके उसूल को कह रहा हूँ समीर साहब, आपके उसूल से तो हम भी कंप्लीट पेयर हो गए, हमें औरत की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। आप जो नहीं, उसूल मेरा बैन कर असूल रहे हैं, नहीं है ना ये। अभी आपने बैन किया है क्या? कि वो जो जानवर का बताया बरतानवी साहब ने, आपने कहा उसमें मौजूद है दोनों XY क्रोमोसोम्स, तो उसको पेयर की जरूरत ही नहीं है मेल की। तो XY क्रोमोसोम मौजूद है, उसके अंदर टोटल प्लम्बिंग सिस्टम मौजूद है, उनके अंदर गर्भाशय मौजूद है, जिसके तो अंदर की वो अपने उस बच्चे को रखता है। ठीक है, अल्लाह जब सब कुछ जानता था तो उसको कह देना चाहिए था कि ज्यादातर क्रीचर्स जो हैं ये पेयर से बने हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो खुद ब खुद बगैर नर के पैदा कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कहा जी अल्लाह ने कुरान बिल्कुल, में? अल्लाह नहीं को तो कहा ना? चाहिए था वो नहीं 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 माइक्रोबायोलॉजी नहीं की किताब ही लिख देता है। अल्लाह को चाहिए था कि पूरे जियोलॉजी की किताब लिख देता। अरे क्या अरे क्या भाई, बात कर रहे अरे हैं मेरे मोहतरम भाई आप? बात ही नहीं ये करने सुनो देना जरा, भाई। ये यहाँ हमारे ईमान समीर की साहब, बात हो रही हमारे, है, आप अरे यार बायोलॉजी लेके ईमान आ पे रहे हैं। आते हैं यार, अब ईमान वालों से क्या बात करूंगा मैं इसमें? नहीं, बस भाई कर ही ईमान नहीं सकते। वालों का ताल्लुक अब नहीं, आप अब इनसे सरकास्टिक हम हो क्या गए, बात कर सकते हैं? भाई सरकास्टिक ना हो बात गए, नहीं हो सकती ना। नहीं देखें, बात ये सरकास्टिक है, हो गए। आप बार बार ईमान को जो है ला रहे हैं, तो इसमें ना इल्म की बात हो सकती है, ना मंतिक की, ना अकल की, ना दलील की, ना सबूत की। आप किसी चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके सामने ईमान है। ईमान का जब पर्दा जिसकी अकलों पर जो है पड़ा है, जिसकी आंखों पर ईमान की ऐनक लगी है, तो जाहिर बात है वो ना किसी चीज को समझ सकता है और ना जो है वो उसको कबूल कर सकता है। तो अब मेरे भाई, मैं आपसे माजरत चाहूंगा कि हम ईमान वालों से ज्यादा देर बात नहीं कर सकते, क्योंकि जी उनका ताल्लुक इल्म से नहीं होता। जी। हम क्योंकि और इल्मी बात करना चाहते हैं, और आपका ताल्लुक इल्म से नहीं, आपका ताल्लुक ईमान से है। ईमान चलें से, ठीक है, बहुत बहुत ईमान से शुक्रिया आपसे रिप्लाई। सचवाला साहब इन्होंने खुद हाँ एडमिट किया कि हम मारने के लिए तैयार हैं, मारने मरने। तो ईमान और वायलेंस से है आपका ताल्लुक। जी जी हाँ, जी हाँ, चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, बड़ा अच्छा लगा। तो ठीक है, आपका ईमान आपको मुबारक हो। ये अरबों की ज़हनी ग़ुलामी आप करते रहें, ये आपका अपना जो है आपका शौक़ है, आपका ज़ौक़ है। हम कैसे आपको रोक सकते हैं? हम तो जी सिर्फ़ जो है चाहते हैं कि भी लोग इस ज़हनी ग़ुलामी की बीमारी से बाहर आएँ। हमारी ये कोशिश होती है, लेकिन अब कोई यानी जानते बूझते इसी बीमारी में मुब्तला रहना चाहता है, तो अब हम उसको कैसे निकाल सकते हैं बाहर, बताइए? कैसे जी निकाल सकते हैं? उससे सच ना वाला जी, इल्म की बात मुझको कर सकते हैं, ना मंतिक की बात, ना फ़हम की बात, ना दलील की बात, ना सबूत की बात। अरे भई, हर हर मौके पर हर एक जुमले के बाद अपने ईमान को जो है लेके आ जाता है, तो उससे गुफ्तगू कैसे होगी, बताइए कैसे होगी? हो ही नहीं सकता। बताइए कैसे होगी? ये पॉसिबल ही नहीं है ना। भाई, बात तो आप उससे कर सकते हैं जो इल्म की बात समझता हो, जो इल्म की भाषा जानता हो। अरे भाई, यहाँ तो हर दूसरे लम्हे में जो है वो अपने ईमान को लेके बीच में लेके आ रहे हैं, उनसे कैसे बात होगी? बताओ कैसे होगी? आप समझ रहे हैं बात को? भाई, ये तो हमने जी मान लिया कि अल्लाह है, ये तो हमने मान लिया कि रसूल है, ये तो हमने मान लिया कि ये किताब है। अरे हम उनको बता रहे हैं कि देखें यहाँ पर खलक़ल अज़वाज कुल्लहा कह रहा है, तो कह रहे नहीं नहीं ऐसा ही नहीं है, ये तो गलत नहीं है। अरे भाई, जब हम उनको बता रहे हैं कि ये चीज़ गलती है, तो वो उस गलती को तस्लीम करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि उसने ये मान लिया कि जो है अल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है और ये कलाम अल्लाह का है, तो ये भी परफेक्ट है, इसमें गलती हो ही नहीं सकती। तो अब ऐसे शख्स से आप कितनी देर गुफ्तगू कर पाएंगे, बताइए कितनी देर? नहीं नहीं कर कर सकते। सकते ना। यही जी तो हम कहना बिल्कुल। चाह रहे हैं। जी। और वाहिद इनका तरीका है अपने मजहब को बढ़ावा देने का। इन्होंने खुद एडमिट किया ना कि हम मारने मरने तैयार हो जाते हैं, तो ये वायलेंस के जरिए हाँ, ही ज़ाहिर बात है, अपने वो मजहब को अब जो है, कायम रख क्योंकि सकते हैं। ईमान जी ईमान का अल्टीमेट तकाज़ा यही है कि वो जी पहले तो अपनी बात मनवाता है, जी तो सामने वाला जब मान जाए तो वो उससे दोस्ती करेगा, अगर नहीं मानता है तो उसको मारने के लिए खुद मरने के लिए तैयार हो जाएगा। जी जी ये ईमान बरतानवी इसी का साहब, तो नाम है ना। जी हाँ। बिल्कुल
बरतानी साहब ये देखिए, वो क्रोमोसोम्स और बाकी की सारी चीजों की मतलब बेसिक साइंस की स्टडी उनकी बराबर है सब अपनी जगह पे। अरे पढ़े लिखा आदमी है यार, बहुत पढ़ा पढ़ा लिखा लिखा आदमी है ना, वो ऐसी बातें कर रहा है, सोचो आप। नहीं, अब तो असल में जाहिर सी मैं क्या वही तवक्को कहना करो। चाह रहा हूँ ना कि देखें, ईमान असल में वो अंधेरा है जिसमें रहते हुए इंसान को ना कुछ सुझाई देता है ना जो है कुछ दिखाई देता है। यही तो मुश्किल है ना, यही तो मुश्किल है। अब ऐसे आदमी से आप कैसे बात करेंगे, कितनी देर जो है उससे गुफ्तगू कर सकते हैं? जो अंधेरे में रहना पसंद करता है, जिसको अंधेरे से प्यार हो गया है, अब आप उसके सामने रोशनियों की तारीफें करेंगे, भाई रोशनी ऐसी होती है, ऐसी होती है। वो ना कभी रोशनी को देखा है और ना देखना चाहता है। आप उसके साथ कितनी देर जो है रोशनी की बात कर सकते हैं? कितनी देर? नहीं कर सकते ना। बिल्कुल, यही तो मुश्किल है हमारे मोमिन भाइयों सूरज से। की रोशनी और पैदाइशी अंधा। कितना बड़ा मुनाफिक है वो आदमी। उसने कहा कि एक साइंटिफिक गलती बताओगे तो मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, कैसे भागा। और नहीं, ऐसी बात नहीं है हमारे बरतानवी साहब। असल में इन लोगों पर आप तरस खाएं, इनसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए जरा, इन पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। देखें, ये असल में अरबों के जहनी गुलाम हैं। तो जहनी गुलामी दरअसल इंसान से यही सब कुछ करवाती है। आप नाराज ना हो और इस तरह से जो है आप इतना वो अपना इस तरह की जो है मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि जो अहल आदमी है कोई पान ठेला चला रहा है वो ऐसी बात कर रहा है तो बात समझ में आती है। एक पढ़ा लिखा आदमी, नहीं पढ़ा लिखा आदमी आप समझ नहीं रहे। देखें कि इनके दिमाग का एक कोना हर हाल में ये ईमान से भरा होता है। वो इनका इल्म भी इनके इल्म के ऊपर भी ईमान की कोटिंग हो जाती है, ईमान चढ़ जाता है। तो वो जो जब चढ़ जाती है तो फिर अब वो जालिम तो चढ़ जाती है, क्या करें। जी बिल्कुल बिल्कुल।